نیکسٹ فارمولا ہم دیکھنے جا رہے ہیں PMT کا فارمولا. PMT فارمولا بیسیکلی ہم ڈسکس کرتے ہیں پریزنٹ مارکیٹ ریٹ. اس فارمولے کا بیسیکلی جو مین فنکشن ہے وہ مارگیج کے حوالے سے یوز ہونے والی کمانڈ ہے. مثال کے طور پر بہت سارے ایجنٹس یا شاپس یا کمپنیز آپ نے دیکھی ہوگی جو کہ آپ کو چیزیں جو ہے وہ انسٹالمنٹ پہ پلان بنا کر دیتے ہیں. تو انہوں نے ڈفرینٹ آئٹمس کے اوپر کس طرح سے بیسیکلی انسٹالمنٹ پلان بنایا ہوتا ہے، اس کا یہ ایک PMT کے فارمولے کے ذریعے ہم اس کا ریزلٹ نکالنے کی کوشش کریں گے. فار ایگزامپل ایک کسٹمر نے ایک آئٹم بائی کیا لائک لیپ ٹاپ کی ڈاؤن پیمنٹ بیسیکلی پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. لیپ ٹاپ کی جو اماؤنٹ تھی لائک وہ 68,000 روپیز تھی. اس نے ڈاؤن پیمنٹ کیا لائک 10,000 روپیز. نمبر آف ایئر آپ کو کہتا ہے کہ اسے 3 سال کے لیے لیپ ٹاپ انسٹالمنٹ پہ چاہیے. بینک جو مارک اپ اس پہ چارج کر رہا ہے وہ 22% ہے، اور اس کا جو منتھلی پلان بنا ہے وہ ہم یہاں پر حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فارمولا ہر دفعہ کی طرح یہاں پر بھی اسٹارٹ ہوگا ایکولز ٹو کی سائن کے ساتھ، ایکول ٹو PMT. PMT کا فارمولا سینٹیکس میں ہمیں بتاتا ہے کیلکولیٹ دا پیمنٹ فار اے لون بیسس اور کنسٹینس پیمنٹ اینڈ اے کنسٹینس انٹرسٹ ریٹ. PMT بریکٹ اوپن. دین اس کے بعد ہمیں کہتا ہے ریٹ بتائیے. ریٹ کا مطلب انٹرسٹ ریٹ. تو بینک انٹرسٹ ریٹ بیسیکلی چارج کر رہا ہے 22%، لیکن یہ جو 22% ہے یہ پر اینم ہے، ایک سال کا چارج ہو رہا ہے، پر منتھ نہیں ہے. تو ہم اس پرسنٹیج کو ڈیوائڈ کر دیں گے 12 سے، تو ہمارے پاس پر منتھ کا مارک اپ آ جائے گا. کاما کریں گے. نمبر آف پیریڈ، کتنے عرصے کے لیے پیسہ کے لیے لون لی جا رہی ہے، تو لون لی جا رہی ہے 3 ایئرس کے لیے. تو جب ہم 3 کو ملٹیپلائی کریں گے 12 کے ساتھ تو 36 منتھ کا پلان ہمارے پاس آ جائے گا. دین اس کے بعد کاما. پریزنٹ ویلیو، لیپ ٹاپ کی جو قیمت ہے اوریجنل وہ ہے 68,000، لیکن اس میں سے ہم مائنس کرتے ہیں 10,000 روپیز جو کہ ہم ڈاؤن پیمنٹ کر چکے ہیں. تو ریمیننگ اماؤنٹ جو ہے وہ بیسیکلی ایکچوئل میں ہم بینک سے لون لے رہے ہیں، جس پر بینک مارک اپ لگائے گا 3 ایئرس تک، اور اس کی 36 منتھ کی انسٹالمنٹ پلان بنا کر ہمیں دے دے گا. فائنلی ہم اس فارمولے پہ بریکٹ کلوز کر کے انٹر کرتے ہیں. منتھلی پلان ہمارے پاس بن کر آ گیا 2,215 روپیز منتھلی پلان ہمارا ہے. ہم اس ڈالر کے سمبل کو کاما کی مدد سے ہٹا رہے ہیں. اگر مثال کے طور پر لیپ ٹاپ جو 68,000 کا تھا، اگر ہم کوئی اور لیپ ٹاپ بائی کرتے ہیں جس کی اماؤنٹ 75,000 تھی، ہم نے ڈاؤن پیمنٹ ایکچوئل میں 10,000 ہی دیا ہے. 3 ایئرس کے لیے پلان لے رہے ہیں، 22% بینک جو ہے وہ مارک اپ لے رہی ہے. تو اس کا جو منتھلی پلان اب ہمارے پاس بن کر آیا ہے وہ بیسکلی 2,482 روپیز. اگر لیپ ٹاپ کی جگہ فار ایگزامپل آپ فائنانس کے ساتھ ہیں کار جس کی قیمت مثال کے طور پر 6,80,000 روپے ہے، اور آپ نے ڈاؤن پیمنٹ کیا لائک 1,00,000 روپے، آپ نے لون لیا فار ایگزامپل 5 سال کے لیے، بینک نے آپ کو مارک اپ لگایا 22%، تو اس کا جو منتھلی پلان آپ کے پاس آئے گا وہ 16,018 روپیز 97 پیسہ یہ منتھلی پلان بن کر آئے گا. تو جب آپ کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں لون کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اچھا ایون اگر میں اس کے لیے لون پرسنل لون لیتے ہیں تو ہیڈنگ میں ڈال دیتا ہوں پرسنل لون. میں نے لون لی بینک سے لائک 1,00,000 روپے کا، اور اس میں ڈاؤن پیمنٹ تو آپ کو پتہ ہے ہوتی ہی نہیں ہے. لون لے رہا ہوں میں 3 سال کے لیے، اور بینک مجھے مارک اپ لگا رہا ہے 22%. تو میرا جو منتھلی پلان ہے وہ 3,819 روپیز، یعنی ایوری منتھ مجھے جو ہے وہ 3,819 روپیز کا چیک جو ہے وہ بینک میں ڈراپ کرنا ہے، اگر کنسٹینس مارک اپ اور کنسٹینس جو ہے وہ ویلیو ہمارے پاس پلان رہتی ہے. تو جب آپ کسی بھی فائنینشیل کمپنی سے کوئی بھی آئٹم یا کوئی بھی چیزوں کو انسٹالمنٹ پلان بناتے ہیں، تو ان کے پاس سارٹ آف یہ چھوٹا سا پروگرام ڈیزائن ہوا ہوتا ہے. وہ جسٹ آئٹم کا نام ڈالتے ہیں، اس پہ اماؤنٹ انٹر کرتے ہیں، آپ ڈاؤن پیمنٹ کیا دے رہے ہیں وہ انٹر کرتے ہیں، نمبر آف ایئر آپ نے کتنا پلان بنایا ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں، مارک اپ وہ اپنا بتاتے ہیں، انسٹالمنٹ پلان جو ہے وہ خود بخود بن کے ہمارے پاس آتا ہے.
अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ जिस पर मुझे 1 लाख रुपया लोन मिल रहा है, डाउन पेमेंट 0 है, 3 इयर्स के लिए प्लान ले रहा हूँ और 22% मार्कअप है। तो मुझे ये मालूम करना है कि एवरी मंथ जो मैं 3,819 रुपीज़ का चेक बैंक को दूंगा उसमें से बैंक कितना अमाउंट प्रिंसिपल में रखेगा और कितना अमाउंट इंटरेस्ट में रखेगा। तो इसके लिए अगेन हम एक डिटेल प्लान बनाते हैं जो इसी के कनेक्टिविटी में होगा। इसके लिए हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं पीरियड, देन उसके बाद मार्कअप, सॉरी इंटरेस्ट, और ये 4 हेडिंग्स हमने यूज की है। इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, मार्कअप और टोटल हमारा कितना सबमिट होगा। अच्छा, पीरियड के अंदर बेसिकली हम डिफाइन करेंगे 36 मंथ का प्लान, चूंकि हम लोन ले रहे हैं 3 इयर्स के लिए, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ड्रैग करेंगे 36 मंथ तक के प्लान को। फार्मूला पहला लगेगा इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का फार्मूला स्टार्ट होता है IPMT के जरिए। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ये आइडिया हो कि ये फार्मूले की कैटेगरी है। फार्मूला हमने स्टार्ट किया इक्वल्स टू IPMT और ब्रैकेट ओपन किया। अब इसके सिंटैक्स को भी अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें काफ़ी सिमिलरिटी आपको मिलेगी जो हमने पहले PMT में देखी थी। सबसे पहले कहता है कि रेट बताइए, यानी इंटरेस्ट रेट। बैंक हमसे रेट चार्ज कर रहा है 22%, लेकिन ये 22% जो है वो मंथली ईयरली है, तो हम इसको मंथली प्लान के ऊपर लाएंगे, यानी डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। देन कॉमा। अब यहाँ पर एक नई चीज़ आ गई है हमारे पास, पर का मतलब होता है पीरियड। तो बेसिकली हम जो पहली इंस्टॉलमेंट यानी इंटरेस्ट निकाल रहे हैं वो फर्स्ट मंथ की निकाल रहे हैं, तो पर में हमें 1 पे क्लिक करना है ताकि पहला महीना यहाँ पर डिफाइन हो। देन उसके बाद कॉमा, नंबर ऑफ पीरियड, कितने साल के लिए हम लोन ले रहे हैं। हम लोन ले रहे हैं बेसिकली 3 इयर्स के लिए, हमने 3 इयर्स पे क्लिक किया। देन कॉमा, फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू, 1 लाख रुपए का हम लोन ले रहे हैं जिसमें से हमने कुछ भी डाउन पेमेंट नहीं किया, तो हम इसको माइनस लाइक 0 करके इंटर करते हैं। जब हम पहली मर्तबा इंस्टॉलमेंट जमा करवाएंगे तो एक्चुअल में बैंक हमें 1,833 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट में रख लेगा और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल में डाल देगा। तो हम प्रिंसिपल अमाउंट को भी देख लेते हैं यहाँ पर कि वो कितना है। इसके लिए हम फार्मूला लगा रहे हैं PPMT का। PPMT के फार्मूले को स्टार्ट करते हैं, सेम सिंटैक्स है। रेट बताइए, हमने कहा रेट है 22%, इसको डिवाइड करेंगे 12 से। एक छोटा सा प्रॉब्लम हमने यहाँ पर किया है और वो था हमारा नंबर ऑफ ईयर, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं किया था, मल्टीप्लाई बाय 12 सॉरी, तो हमारा 36 मंथ का प्लान जो है आएगा। फार्मूला हम दोबारा लगा रहे हैं PMT। रेट, इंटरेस्ट रेट है हमारा 22% डिवाइडेड बाय 12, नंबर ऑफ पीरियड ये पहला महीना है, कॉमा, एन पर हम ले रहे हैं 3 इयर्स के लिए लोन जिसमें इसको मल्टीप्लाई करें वो 12 से, और कॉमा 1 लाख में से हमने माइनस कर दिया डाउन पेमेंट को और एंटर किया। ये प्लान हमारे पास आ गया कि 1,985 रुपीज़। हम टोटल कर लेते हैं, इक्वल्स टू इंटरेस्ट रेट प्लस प्रिंसिपल रेट, अमाउंट आ गया 3819 और बैंक भी हमसे ये कह रहा है कि 3819 आपको पेमेंट करना है। फाइनली इन तीनों को मैं कन्वर्ट करता हूँ अपने न्यूमेरिकल लाख रुपीज़ के अंदर। अब ये पूरा एक फार्मूला हमने तैयार तो कर दिया, लेकिन ये फार्मूला जो है वो ठीक से वर्क नहीं करेगा उस सूरत में जब मैं इसको ड्रैग करूँगा। ये देखें ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब मैंने पहली दफ़ा फार्मूला लिखा था और उस पर मैंने रेंज डिफाइन की थी, तो हर एक सेल एड्रेस की रेंज बिल्कुल प्रॉपर आ रही है, जिसकी वजह से रिजल्ट भी मेरे पास बिल्कुल ठीक से जनरेट हो रहा है।
लेकिन जब मैं सेकंड सेल के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखिए रेंज एक एक स्टेप नीचे आ गई। उसने पहली अमाउंट 1 लाख रुपीस को स्किप कर दिया और नीचे दूसरे सेल को रेंज में लेना शुरू कर दिया। इसके बाद जब मैं थर्ड सेल पर डबल क्लिक करके देखता हूँ तो आप देखिए उसने ऊपर के 2 सेल को स्किप कर दिया और नीचे के 2 सेल्स की रेंज बनाकर आगे काम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से रिजल्ट मेरे पास गलत आ रहा है। तो ऐसी सूरत के अंदर कि जब आपके पास रिजल्ट ट्रैक करने हो और आपके पास कंटिन्यूएशन में कोई और वैल्यू ना हो, तो ऐसी सूरत में सेल एड्रेस को फिक्स किया जाता है। सेल एड्रेस को फिक्स करने के लिए हम लोग कीबोर्ड से F4 के बटन को इस्तेमाल करते हैं। और कैसे फिक्स करते हैं इसको हम दोबारा से देखते हैं। फार्मूला स्टार्ट होगा इक्वल्स टू RPMT ब्रैकेट ओपन, रेट है 22%। अब ये जो 22% रेट है ये थ्रू आउट 36 मंथ का जो प्लान बन रहा है उसमें मार्कअप जो है वो फिक्स है। तो इसलिए इस सेल पर खड़े रहकर हम F4 करेंगे कीबोर्ड से। F4 प्रेस करने से $7 आ जाएगा। ये सेल एड्रेस को फिक्स करता है। जब हम एक और दफ़ा F4 प्रेस करते हैं तो $7 आता है, ये पर्टिकुलर रॉ को फिक्स करता है। जब हम दोबारा F4 करते हैं तो ये कॉलम को फिक्स करता है और जब हम दोबारा F4 करते हैं तो ये पर्टिकुलर सेल हमारा नॉर्मल हो जाता है। फिल वक्त हमें $7 यानी सेल एड्रेस को फिक्स करना है। इसके बाद हम कॉमा लगाते हैं। पर यानी पहला महीना है तो हमने 1 पे क्लिक किया, देन कॉमा, नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड बेसिकली 3 इयर्स है। अब ये जो 3 इयर्स का प्लान है ये थ्रू आउट 36 मंथ तक फिक्स है, तो हम इसको F4 करेंगे। एक छोटी सी मिस्टेक जो पहले भी हो गई उसको ठीक कर लेते हैं। 36 मंथ का प्लान बनाने के लिए हमें 3 को मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा और मार्कअप को भी हम डिवाइडेड बाय 12 करना होगा। देन उसके बाद कॉमा, प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट की जा रही है, ये भी थ्रू आउट 36 मंथ तक फिक्स है, तो हम इसको भी F4 करेंगे। माइनस इसमें से डाउन पेमेंट 0 की गई है, ये भी थ्रू आउट 36 मंथ तक फिक्स है, तो इसको भी हम F4 करके फिक्स करेंगे और अब इंटर करेंगे। रिजल्ट हमारे पास जनरेट हुआ। लेकिन इस रिजल्ट में अच्छी बात ये होगी कि जब आप हम इसे ड्रैग करेंगे तो ग्रेजुअली इसका रिजल्ट जो है वो जनरेट होगा, जबकि डबल क्लिक करने से थ्रू आउट 36 मंथ का प्लान हमारे पास बन के आ जाएगा। और हम देखेंगे कि शुरू के मंथ के अंदर कंपनी जो है वो इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज कर रही है, जबकि बाद में इंटरेस्ट कम होता जा रहा है और प्रिंसिपल अमाउंट डेफिनेटली वो इंक्रीज होती चली जाएगी। सेम फार्मूला प्रिंसिपल के ऊपर अप्लाई होगा, इक्वल्स टू PEMT ब्रैकेट ओपन, रेट है जी हमारा 22%, इसको हम फिक्स करेंगे और डिवाइड करके 12 से, कॉमा, पर पहला महीना है, कॉमा, नंबर ऑफ पीरियड 3 इयर्स के लिए प्लान किया जा रहा है F4, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, कॉमा, इसके बाद डाउन पेमेंट 1 लाख रुपीस की जो है वो ली जा रही है, सॉरी इनिशियल अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपीस मांगी जा रही है, इसको फिक्स किया जा रहा है, माइनस, और डाउन पेमेंट जो है वो 0 है, इस सेल एड्रेस को भी फिक्स कर रहे हैं। इंटर कर रहे हैं, रिजल्ट जनरेट हुआ। डबल क्लिक करने से थ्रू आउट 36 मंथ का प्लान हमारे पास आ गया और हम देख सकते हैं कि ग्रेजुअली हर मंथ के अंदर इंस्टॉलमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से टोटल निकालना है, इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, और इसके अंदर किसी को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिंपल दोनों सेल को प्लस कर दिया और इसको ड्रैग करते हैं, लास्ट तक 36 मंथ का प्लान आ गया। एवरी मंथ आपको जो चेक ड्रॉप करना है वो 3819 रुपीज़ का है। सिर्फ हमने उसके ब्रेकअप्स निकाले कि किस तरह से बेसिकली प्लान हमारे पास बन सकता है।